विशिष्ट अतिथि जो मंच पर उपस्थित हैं, सम्मान समारोह के लिए इसी के साथ देवी और सज्जनों, उद्योग विभाग के प्रमुख सचिव श्री राघवेंद्र कुमार सिंह जी से निवेदन है कि वे माननीय मुख्यमंत्री जी को पुष्पगुच्छ भेंट करें। आप सभी की जोरदार तालियों के साथ देवी और सज्जनों, एक बार फिर से देवी और सज्जनों, सम्मान सिर्फ एक औपचारिकता ही नहीं बल्कि ये हमारी कृतज्ञता का प्रतीक है। श्री सिंह मंच पर विराजित हमारे अन्य गणमान्य अतिथियों को भी सम्मानित करेंगे। आप सभी की जोरदार तालियों के साथ देवी और सज्जनों, थैंक यू वंस अगेन। हमारे विशिष्ट अतिथि जिन्होंने अपने विचारों, कर्मों और दृष्टिकोण से समाज और उद्योग जगत में एक स्थान बनाया है, और ना ही सिर्फ वो बल्कि एक नई दिशा भी प्रदान करी है। श्री सिंह, बहुत बहुत धन्यवाद आपका फॉर डूइंग द ऑनर्स। और इसी के साथ आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। इसी के साथ उद्घाटन संबोधन के लिए मैं डेस्क पर आमंत्रित करना चाहूंगी श्री नील सी रहेजा, चेयरमैन CII नेशनल कमेटी ऑन रियल एस्टेट एंड हाउसिंग, प्रमोटर के रहेजा कॉर्प। श्री रहेजा, प्लीज। Good evening, ladies and gentlemen. Honorable Dr. Mohan Yadav, Honorable Chief Minister Madhya Pradesh, Mr. Raghvendra Kumar Singh, IS, Principal Secretary, Department of Industry Promotion, dignitaries on the dais, ladies and gentlemen. Firstly, good evening to you all, and thank you for waiting. The program was a little late because the flight was running late. We at CII have had the opportunity of welcoming the Honorable Chief Minister the last occasion as well. And CII has had a wonderful partnership and worked very closely with the government. And I must comment here that our Chief Minister has been extremely dynamic, and since he's taken over, we've seen a new vigor in the state, creating new activity, not only on the industry side, but across different activities. And we've seen a lot of investment coming into Madhya Pradesh in the last couple of years specifically. There's been 72,000 crores of projects underway, another 2.9 lakh crores of projects which have been announced, which are on planning stage in smart cities, housing, urban mobility, industry, and various other long-term corridors. Madhya Pradesh is a very strategic location and has been working very closely with the central government on putting forward its programs, both in terms of industry, skilling, agriculture, and created a very unique destination. And at CII, we've had a unique opportunity to work very closely with the government and bring this platform together, and in the past work on various other opportunities for investors like yourselves to come in. Our personal experience has been phenomenal. In the last 15 years, we've been in the state and had an excellent experience. It's a very proactive government, both at the political level and the bureaucracy level. You know, we found a very easy opportunity to work, invest, and the government's been extremely supportive whenever we've had a chance to work with them or talk to them. So with this, I'd like to thank you all for coming in. And once again, Honorable Chief Minister, thank you for giving us the opportunity, and welcome to Mumbai. श्री रहेजा, थैंक यू सो मच। सचमुच संभावनाओं से परिपूर्ण है द राज्य ऑफ मध्य प्रदेश। इसके बारे में और विस्तार से जानने के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगी डेस्क पर श्री राघवेंद्र कुमार सिंह, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड इन्वेस्टमेंट प्रमोशन। सो प्लीज। Vande Mataram, good evening.
मंच पर विराजमान मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी, मंच पर उपस्थित श्री दिलीप सांघवी जी, चेयरमैन सन फार्मा, श्री नील सी रहेजा जी, चेयरमैन CII नेशनल कमेटी रियल एस्टेट एंड हाउसिंग और प्रमोटर रहेजा कॉप, श्री स्तराज अम्बस्था CMD ECGC, श्री सतीश पाई MD हिंडाल्को, श्री अजीत कुमार जैन साहब MD एंड CFFO IPCA लैब, मिस्टर आंद्रे एकहोल्ट मैनेजिंग डायरेक्टर हेटिज, श्री रविकांत कपूर जी वाइस प्रेसिडेंट FIO। सबसे पहले आप लोगों ने इतनी देर तक प्रतीक्षा की और विलंब हुआ कार्यक्रम में, तो उसके लिए मैं खेद प्रकट करते हुए मध्य प्रदेश में जो निवेश की इनफाइनाइट अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनके बारे में कुछ बातें आपके समक्ष रखना चाहूँगा। So the question arises that why on earth anybody should choose Madhya Pradesh, and the answer lies in the fact that Madhya Pradesh has been a land which can be designated as a land of peace and tranquility। कभी वहाँ से अशांति या कुछ उस तरह की खबरें आपको नहीं मिलेंगी। Then if you consider factors of production, be it land, labor and industrial water, anything you count in factors of production, you will find Madhya Pradesh has always been the most competitive and ज़्यादा profit आपको वहाँ पे बनाने का मौका है। We have abundance of industrial land bank, around 100,000 acres. We have we are the center of the entire country, and we have great connectivity through our airports, railways network, and more than 500,000 kilometers of very good highways and road network. We are mineral rich state. We are highest producers of copper, manganese, diamond, and big presence in coal and limestone also. So many cement companies and coal production, Madhya Pradesh is the highest in entire country. We produce electricity at a very affordable rate, and we have abundance of electricity. We have more than our requirement. So we have 31 gigawatt of installed power capacity, and that too with 20% of green power which we are supplying today. जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी का एक पूरे देश के लिए संदेश है, उनका मार्गदर्शन है कि 550 गीगावाट हम 2030 तक इलेक्ट्रिसिटी बनाएंगे। So Madhya Pradesh is also going to give a big contribution in that target for India, और we are trying to have it 5 times जो आज के स्टेटस है, और उस समय जो हमारा एनर्जी बुके होगा वो करीब 50% पर ग्रीन पावर से होगा। We have industrial corridors, we have great institutes of repute, abundance of water at a very affordable rate, more than 1,000 billion cubic meter. For logistic and other purposes, we have 6 inland container depots, 1 multimodal logistic park that is going to be created in Pithampur near Indore, and abundance of skilled manpower at a very low cost, and finally zero man days loss. So Madhya Pradesh has worked well in Government of India supported parks. So we have mega footwear and accessories cluster at Muraina, plastic park in Gwalior, medical devices park and Vikram Udyog Puri, Ujjain, PM Mitra Park, which is a textile garment park which has been inaugurated successfully just a few days back by Honorable Prime Minister sir. We have a plastic park, and we have renewable energy and power equipment manufacturing at Narvadapuram near Bhopal. So we are doing well with Government of India support. Now the policy support of Madhya Pradesh, Madhya Pradesh ने ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब के हाथों 18 नई पॉलिसी बिल्कुल अपडेटेड पॉलिसीज, और आई कैन वाउच कि दे आर वन ऑफ द बेस्ट इन एंटायर कंट्री,
और जिस भी सेक्टर की पॉलिसी आपको है तो 18 नई पॉलिसीज मध्य प्रदेश ने डिक्लेयर की हैं. So presently I will talk regarding a little bit regarding industrial promotion policy. So we have investment promotion assistance up to 40%. We have some multipliers regarding multipliers with employment multiplier is there, export, priority area and foreign direct investment multiplier is there. So over and above IPA you are going to get that. 50% of green industrialization infrastructure support is there, export, freight subsidy of 50%, 25% support in R&D facilities, and VGF for industrial housing provision is also there. And then if you want to create your own private industrial park, there too Madhya Pradesh policy supports you like anything. We give 50% fixed capital expenses, 100% waiver of stamp duty and registration fee, and 50% on green industrialization. Now we have given some additional incentives for RE manufacturing and high value added sectors. And apart from the things which I have told you earlier, that 50% concession in development charges will be given to you. 50% on quality certification support will be given to you. For high value added, additional capital subsidy up to 30% and reimbursement on quality certification, skill development assistance, etc. can also be given. So इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि ये तो हमारी पॉलिसी के हैं. इफ़ यू इन्वेस्ट इन हाई वैल्यू एडेड सेक्टर मोर देन 75 crores, we can give you customized package which is if your investment is beyond 75 crores. और अगर आपका RE इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग में है तो हम आपको 250 करोड़ से ऊपर हम आपको कस्टमाइज पैकेज दे सकते हैं. And that meeting is chaired by Honorable CM Sir, who incidentally happens to be Industry Minister also. So the kind of priority Honorable CM has given to industrial sector and investment sector is shown by the way that he himself holds the charge, and he is giving much of his time. His priority has become industrial development of Madhya Pradesh. तो उस कमेटी को Honorable CM Sir हेड करते हैं और उसमें हम आपको पॉलिसी के बियॉन्ड भी सपोर्ट कर सकते हैं. यहाँ बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं हु हैव ऑलरेडी अवेल्ड इट. पावर और रिन्यूएबल एनर्जी इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग जो नर्मदापुरम में हमारा भोपाल के पास में है, तो इसके लिए करीब सेकेंड फेज का फेज 1 का सक्सेसफुली हम लोगों ने काम कंप्लीट किया, जिसमें कि हमने निवेशकों को जो प्रोत्साहन दिए तो उससे हमारे पास करीब 20,000 करोड़ के आसपास के निवेश के प्रस्ताव मिले. उस पर उन्होंने काम शुरू किया है. फेज़ 2 में 750 एकड़ ज़मीन है, रेडी टू अलॉट है. फिर उसके बाद से वहाँ पे लैंड प्रीमियम केवल 25% प्रिवेलिंग लैंड रेट का है, और जो डेवलपमेंट पर एक्सपेंसेस है वो 20 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स में लेने का है. सो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल लैंड कॉस्ट है. Water at a very affordable rate of ₹25 per kiloliter, 100% exemption on stamp duty and registration fee. इसमें केवल एक चीज़ मैं आपको जरूर बताना चाहूँगा कि इसके लिए जो एप्लीकेशंस हम लोगों ने इनवाइट की हैं वो एप्लीकेशंस 1 billion cubic meter for logistic and other purposes. We have 6 inland container depots, 1 multimodal logistic park that is going to be created in Pithampur near Indore, and abundance of skilled manpower at a very low cost, and finally zero man days loss. So Madhya Pradesh has worked well in Government of India supported parks. So we have mega footwear and accessories cluster at Murena, plastic park in Gwalior, medical devices park and Vikram Udyogpuri, Ujjain, PM Mitra Park, which is a textile garment park which has been inaugurated successfully just a few days back by Honorable Prime Minister Sir. We have a plastic park, and we have renewable energy and power equipment manufacturing at Narmadapuram near Bhopal. So we are doing well with Government of India support. Now the policy support of Madhya Pradesh
मध्य प्रदेश ने ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब के हाथों 18 नई पॉलिसी, बिल्कुल अपडेटेड पॉलिसीज़, और आई कैन वाउच कि दे आर वन ऑफ द बेस्ट इन एंटायर कंट्री। और जिस भी सेक्टर की पॉलिसी आपको है तो 18 नई पॉलिसीज़ मध्य प्रदेश ने डिक्लेयर की हैं। So presently I will talk regarding a little bit regarding industrial promotion policy. So we have investment promotion assistance up to 40%. We have some multipliers regarding multipliers with employment multiplier is there, export, priority area, and foreign direct investment multiplier is there. So over and above IPA you are going to get that. 50% of green industrialization infrastructure support is there, export, freight subsidy of 50%, 25% support in R&D facilities, and VGF for industrial housing provision is also there. And then if you want to create your own private industrial park, there too Madhya Pradesh policy supports you like anything. We give 50% fixed capital expenses, 100% waiver of stamp duty and registration fee, and 50% on green industrialization. Now we have given some additional incentives for RE manufacturing and high value added sectors. And apart from the things which I have told you earlier, that 50% concession in development charges will be given to you. 50% on quality certification support will be given to you. For high value added, additional capital subsidy up to 30%, and reimbursement on quality certification, skill development assistance, etc. can also be given. So इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि ये तो हमारी पॉलिसी के हैं. इफ़ यू इन्वेस्ट इन हाई वैल्यू एडेड सेक्टर मोर देन 75 crores, we can give you customized package which is if your investment is beyond 75 crores, और अगर आपका RE इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग में है तो हम आपको 250 करोड़ से ऊपर हम आपको कस्टमाइज पैकेज दे सकते हैं. And that meeting is chaired by Honorable CM Sir, who incidentally happens to be Industry Minister also. So the kind of priority Honorable CM has given to industrial sector and investment sector is shown by the way that he himself holds the charge, and he is giving much of his time. His priority has become industrial development of Madhya Pradesh. तो उस कमेटी को Honorable CM Sir हेड करते हैं, और उसमें हम आपको पॉलिसी के बियॉन्ड भी सपोर्ट कर सकते हैं. यहाँ बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं हु हैव ऑलरेडी अवेल्ड इट. पावर और रिन्यूएबल एनर्जी इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग पर जो नर्मदापुरम में हमारा भोपाल के पास में है, तो इसके लिए करीब सेकेंड फेज का फेज 1 का सक्सेसफुली हम लोगों ने काम कंप्लीट किया, जिसमें कि हमने निवेशकों को जो प्रोत्साहन दिए, तो उससे हमारे पास करीब 20,000 करोड़ के आसपास के निवेश के प्रस्ताव मिले. उस पर उन्होंने काम शुरू किया है. फेज़ 2 में 750 एकड़ ज़मीन है, रेडी टू अलॉट है. फिर उसके बाद से वहाँ पे लैंड प्रीमियम केवल 25% प्रिवेलिंग लैंड रेट का है, और जो डेवलपमेंट पर एक्सपेंसेस है वो 20 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स में लेने का है. सो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल लैंड कॉस्ट है. Water at a very affordable rate of rupees 25 per kiloliter, 100% exemption on stamp duty and registration fee. इसमें केवल एक चीज़ मैं आपको जरूर बताना चाहूँगा कि इसके लिए जो एप्लीकेशंस हम लोगों ने इनवाइट की हैं, वो एप्लीकेशंस करें. देवी और सज्जनों, आप सबकी जोरदार तालियों के साथ एक बार फिर माननीय महोदय जी. आज के इस कार्यक्रम में सन फार्मा के चेयरमैन माननीय दिलीप संघवी जी, नील रहेजा जी, चेयरमैन CII श्रीमान अम्बस्था जी, सतीश पाई जी, अजित कुमार जैन जी, आंद्रे जी, रविकांत कपूर जी, हमारे PS राघवेंद्र सिंह जी, इस अवसर पर देश की आर्थिक राजधानी मुंबई के आप सब मित्रों, आपको सबको प्रणाम करता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ. बदलते दौर में अपने सबके आंखों के सामने यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश ने कैसी करवट ली है हम सब देख रहे हैं.
आप सब तो वो दौर से अपने अपने व्यापार व्यवसाय को लेकर के आ रहे हैं जहाँ कई चुनौतियाँ भी थी, कई प्रकार के झंझावातों के बीच भी आपकी उद्यमशीलता के बलबूते पर आपने अपने अपने मुकाम को हासिल किया है। क्योंकि ये बात सही है कि देश के अंदर परिस्थितियां, देश के अंदर की उद्यमशीलता, आपकी जिजीविसा वो कभी कम नहीं रही। इसीलिए आज नहीं, हजारों साल से भारत की पहचान सब प्रकार से एक प्रगतिशील देश के नाते से रहती आई थी। इसलिए वो हमारी अच्छाई भी कभी कभी, जैसे ज़्यादा मीठा भी कहीं ना कहीं तकलीफ दे जाता है, तो विनम्रता, सरलता, सज्जनता, सबको लेके चलने का भाव, सरलता से किसी को भी अपनी सारी व्यवस्थाओं के सूत्र दे देने के परिणाम दुष्परिणाम में कैसे बदलते हैं। दुनिया के अंदर कोई देश इस सारी बातों का शिकार हुआ तो दुर्भाग्य से हमारा भारत हुआ है, जहां समुद्र तट के बंदरगाह भी जो विकास के पर्याय होते हैं वो हमारे को गुलामी के रास्ते पे ले गए। अतीत के क्रम में 200-300 साल पुरानी बात है, लेकिन आज बदला है समय। हमारे बंदरगाह भी सुरक्षित है, हमारे समुद्र भी विशाल लहर लेते हुए दुनिया के सभी महासागरों की तरफ कदम बढ़ाते हुए, आज दुनिया का कौन सा ऐसा मंच है जहां मोदी जी जाए और आनंद नहीं आए। ये आज बदलते दौर का भारत, इसका एहसास हम सबको हो रहा है। और कितने सेक्टर खोल दिए माननीय मोदी जी ने। कोई एक सेक्टर हो तो बात समझ में आती, अभी तो ये डिसाइड करना मुश्किल है कि अब हम कौन कौन से सेक्टर में जाएं। रहेजा जी से मैं पूछ रहा था कि कौन कौन से सेक्टर में हो, तो आपने कहा आईटी से लगा कर रियल एस्टेट तक, और अब तो आने वाले समय में हमारे रक्षा उत्पादनों के लेकर के कितनी प्रकार की संभावना कहाँ कहाँ से खुल रही है। और ये प्रत्येक क्षेत्र हमको अपने कामों को बढ़ाने के लिए बुला रहे हैं। मैं मध्य प्रदेश के संदर्भ में भी बोलना चाहूँगा, आज बदलते दौर में ये हमारे लिए गया जमाना कि हमारे पास केवल कहीं अपना बंदरगाह हो तो व्यापार व्यवसाय करेंगे। अब तो एयर कार्गो का जमाना आ गया और मध्य प्रदेश अपने सभी प्रकार की नीतियों के बलबूते पर व्यापार व्यवसाय को बढ़ाने के लिए जो जरूरी है, ऐसी 18 प्रकार की नीतियां हमारे पीएस ने अभी आपके सामने रखी है। और जो सरलता से करने वाली बातें हैं, कई प्रकार की अच्छी बातें, जैसे हमारे पास सबसे बड़ा लैंड बैंक भी है और लैंड बैंक के साथ बिजली भी सरप्लस है। मुझे इस बात की प्रसन्नता कि पूरे देश के अंदर सबसे सस्ती बिजली कहीं से वो दे रहे हैं तो मध्य प्रदेश से दे रहे हैं। हमें इस बात का आनंद भी है। इस बात के लिए एक बड़ा भविष्य की संभावना वाला सेक्टर है। और उतरे ही नहीं, उसके साथ साथ आईटी का सेक्टर, रियल एस्टेट में भी इंदौर मेट्रोपॉलिटन हमने बनाया, भोपाल मेट्रोपॉलिटन बनाया, जबलपुर ग्वालियर तो हम कर ही रहे हैं। इसके साथ साथ आईटी के सेक्टर से लगा करके हेल्थ सेक्टर, हेल्थ अभी सन फार्मा के माननीय संघवी जी ने तो बताया ही है। हमारे मेडिकल डिवाइस पार्क विक्रम उद्योगपुरी उज्जैन और उससे लगे हुए जहाँ जहाँ भी हम अपने इंडस्ट्रियल पार्क खोल रहे हैं तो सबसे तेज गति से निवेश आ रहा है, क्योंकि हमारी सरलीकृत व्यवस्था एक तरह से बिजनेस को अनुकूल बनाने के लिए वो सारी बातें, मूल रूप से मैंने अपने मंत्रालय के सब काम तो सबको बांटे हैं, लेकिन आज मोदी जी के नेतृत्व में भारत अगर चौथी अर्थव्यवस्था से तीसरी तरफ जा रहा है और भविष्य के 47 की तरफ बढ़ना पड़ेगा तो सभी राज्य सरकारों को कमर कस के आगे आना पड़ेगा। तो हमने भी कहा सब विभाग दे सकता हूं, लेकिन उद्योग विभाग मुख्यमंत्री रखेगा ताकि सरलता से काम कर सके, उसमें संवाद हो सके। क्योंकि जब हम अच्छा काम करने जाएंगे तो एक अवसरों को, ये बात सही है कि उद्योगपति अपने व्यापार व्यवसाय को बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन बढ़ाने के साथ वो सुव्यवस्था भी चाहते हैं। अव्यवस्था से व्यापार नहीं बढ़ता है, अव्यवस्था से परेशानी बढ़ती है। और सुव्यवस्था की तरफ बढ़ते हैं तो वो उसमें बात का भी पक्का होना चाहिए, काम का भी पक्का होना चाहिए और व्यवस्थाओं के भी पक्के होना चाहिए। सरकार के बलबूते पर हम अगर कोई काम करने जा रहे हैं तो समयबद्ध से सुशासन की नीतियों के बलबूते पर। लेकिन हमने कहा हमारी पॉलिसियां तो है ही, जितने प्रकार की पॉलिसियां उससे सरलता से आप सबको वो पॉलिसियों से बताएंगे, लेकिन उससे बढ़कर के भी हमारे पास अगर अपना निवेश हमारे सम्मान के साथ आता है
तो सीसीआईपी की हमारी मीठा घर 15 दिन में हम करते हैं। और मुख्यमंत्री आपके साथ में इसीलिए बात कर रहे हैं कि आपके व्यापार व्यवसाय के साथ मध्य प्रदेश के अंदर भविष्य में जिस प्रकार से हमने अतीत के भी पिछले 2 साल से लगातार हमने अपने पूरे प्रदेश के अंदर की एक एक कमिश्नरी हेडक्वार्टर पर इंडस्ट्रियल बेल्ट को ला करके सब प्रकार की संभावना पे काम कर रहे हैं। वैसे तो दिलीप जी बताएंगे, देवास जैसा छोटा सा स्थान, मुझे लगता है 1 लाख की आबादी का भी नहीं था जब आपने अपना काम खोला होगा, लेकिन आज देवास मेट्रोपॉलिटन में आ गया है। आपके ये जो बदलते दौर के समय में मध्य प्रदेश जो बदल रहा है, हमारे पास सभी प्रकार की संभावना के साथ चलने का जो अभी वर्तमान का समय चल रहा है। अब ये आज का समय भी ऐसा है, जब मैं महाराष्ट्र में आकर बात कर रहा हूँ तो मैं महाराष्ट्र से अलग नहीं हूँ, महाराष्ट्र से हमारा अतीत का संबंध है। हमको मालूम महाराज शिवाजी ने अगर अपना विजय अभियान प्रारंभ किया तो हमें गर्व है, होलकर, सिंधिया, गायकवाड़, पंवार, ये पूरा हमारा एक अलग अतीत का गौरवशाली पृष्ठ है। अगर हमारे देवालय के ध्वजा अगर महाकाल की लहरा रही है तो उसमें बहुत बड़ा योगदान महाराज शिवाजी का है। हमें इस बात का आनंद है, उस पर गर्व भी है। उस चुनौतीपूर्ण काल में भी बहुत दम से, अलग अलग प्रकार से, कठिन काल भले होगा, लेकिन हमारी सामर्थ्य के बलबूते पर देश के कई राज्यों ने अपनी पहचान बनाई, उसमें से मध्य प्रदेश भी एक है। तो जब मैं आपसे कोई बात कर रहा हूं तो महाराष्ट्र के अंदर आज एक तरफ महाराज शिवाजी का, छत्रपति जी का हमारा योगदान दिखाई देता है, तो हमारे यहाँ विक्रमादित्य से लगा के राजा भोज का संबंध भी दिखाई देता है। ये दोनों काल उस नाते से भी जाने जाते हैं कि सुशासन की मिसाल, लोकतंत्र की मिसाल, वीरता की, दानशीलता की, उद्यमशीलता की, पराक्रम की, पुरुष की, यश की, कीर्ति की, प्रसिद्धि की, सारी चीज़ों को अगर किसी एक व्यक्ति में देखना चाहो तो 2000 साल पहले के विक्रमादित्य में वो सब देख सकते हैं। हमें गर्व है कि वो हमारे राज्य के गौरव है, जिनके कारण से आज भी लोग विक्रमादित्य की उन सारे गुणों को जान करके उनसे सीखना चाहते हैं। और आज का युग, जैसे मैंने पहले भी कहा है कि जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो हम इतना ही कहने आए कि आप महाराष्ट्र में भी काम बढ़ाइए, अच्छा काम करिए, लेकिन मध्य प्रदेश भी आप उसका ही भाई है, जोड़ीदार प्रदेश है मध्य प्रदेश, दोनों में कोई अंतर नहीं। आप मध्य प्रदेश में भी महाराष्ट्र जैसे एहसास पाएंगे। मैं आप सबको निमंत्रित करने आया हूँ, पुनः आपका वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। एमपी के विकास के मुख्य शिल्पकार, एमपी के उज्जवल भविष्य के आधार, माननीय महोदय जी, एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। आपके प्रेरणादायी अन्याय से इंक्लूसिव विचारों से आज हम सभी अभिभूत हैं। इस शानदार कार्यक्रम के समापन की ओर बढ़ते हुए धन्यवाद ज्ञापन के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगी श्री रविकांत कपूर, वाइस प्रेसिडेंट फियो। सर प्लीज। माननीय मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी, श्री राघवेंद्र कुमार सिंह जी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी, इन्वेस्टमेंट प्रमोशन, गवर्नमेंट ऑफ एमपी, श्री चंद्रमौली जी शुक्ला, मैनेजिंग डायरेक्टर एमपी आईडीसी, distinguished dignitaries on the dais, and also all our esteemed guests and dignitaries. I believe today has been quite a wonderful day, apart from the little delays that have taken place for whatever logistical reasons. It is a very befitting moment that you have the Honorable Chief Minister Sahab from Madhya Pradesh, the largest landmass in India, if I am not mistaken. The name is Madhya Pradesh, which means it is the center of India. It's a place where our Honorable Mukhyamantri ji is born, in Ujjain, the land of Shri Mahakal. May I say Har Har Mahadev. God always blesses everybody.
We go back, sir, thousands of years, as you just mentioned. Somebody mentioned the Rig Veda was 1 lakh years old. We are yet trying to reconfirm that through some scientific work. And India is not a country, it's a nation, a civilization that has withstood the test of time. In spite of, from 1000 years ago, when we had a GDP, a world GDP of 25%, today we are 2.5%. It was a country right till 1757, till the British came to India, and we still maintained those high GDP levels. We had Nalanda, where you had 160 countries sending their students for training.